Physical Africa. First of all, important rivers of Africa. Important river. And first river is River Nile. लिखेंगे. It originates from Lake Victoria as White Nile. It originates as white. It originates from Lake Victoria as White Nile. Then it is joined by. Then it is joined by Blue Nile near capital of Sudan, Khartoum, and thereafter it is known as Nile. And thereafter it is known as capital of Jammu, Khartoum. अरे आपको करा दिया ना पॉलिटिकल, पता होना चाहिए खर्तूम किसकी कैपिटल है. किसकी कैपिटल है? सूडान की. तो origin of river Nile is from Lake Victoria and it is called as White Nile. Then it is joined by a river called as Blue Nile. These two join at a place called as Khartoum and thereafter it is called as Nile, and it makes its delta in Egypt. And it makes its delta in Egypt. Next, it is the world's longest river. It is world's longest river. Next, important dam, Aswan. Important dam, Aswan. अब जब आप डैम बनाते हैं किसी रिवर पे तो लेक बन जाती है, और लेक का नाम क्या है? लेक नासिर, named after first president of Egypt. Important dam is Aswan and the lake formed is Lake Nasir. नेक्स्ट पॉइंट, इजिप्ट को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल. इजिप्ट इज नोन एज गिफ्ट ऑफ नाइल. नेक्स्ट रिवर, Congo. Old name Zaire. Next river is Congo. Old name was Zaire. It is the largest river of Africa. Largest river of Africa. And second largest in the world. And second largest in the world after river Amazon. After river Amazon in South America. Next point, very important, it cuts equator twice. It cuts equator twice. Important waterfall, Bayoma Falls. It makes important waterfall, Bayoma Falls. Old name Stanley Falls.
old name Stanley. Next river is Zambezi. Next river is Zambezi. It makes world's largest. It makes world's largest, widest, or broadest waterfall, namely Victoria Falls. Old name Livingstone Falls. Namely Victoria Falls, old name Livingstone. Next river, Limpopo. Limpopo, Limpopo. It cuts Tropic of Capricorn twice. It cuts Tropic of Capricorn twice. Next is Orange. ब्रदर आप लिखेंगे वाल, VAAL, वाल. इसकी एक ट्रिब्यूटरी है ऑरेंज. It is a main river of South Africa. Main river of South Africa. Next is Niger River. It is one of the main rivers of Africa. One of the main rivers of Africa. It originates from Loma Mountains, Loma. Originates from Loma Mountains and makes its delta in Nigeria. Important dam, Kanji Dam in Nigeria. Next river, Volta. VOLTA, Volta. It is a major river in Ghana. Major river in Ghana. ये थी आपकी मेन rivers. Now important lakes. Important lakes of Africa. First is Lake Victoria. Lake Victoria. It is the largest lake in Africa. Largest lake in Africa. Second largest freshwater lake. Second largest freshwater lake after. कौन बताएगा? वो वॉल्यूमिनस है. Superior, after Lake Superior in North America. Next point, it is source of River Nile. Source of River Nile. अब आप लोगों को मैंने बताया था ना रिफ्ट वैली क्या होती है, याद है किसी को?
हाँ जी, रिफ्ट वैली। यस और नो? बताया था कि नहीं? रिफ्ट वैली। इंडिया में कौन सी रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं? नर्मदा, तापी और दामोदर। बताया था ना रिफ्ट वैली क्या होती है। अब जो लार्जेस्ट रिफ्ट वैली है कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, उसका नाम है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इट्स कॉल्ड एज ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ हमारे अफ्रीका से ओरिजिनेट होती है, फिर ये नॉर्थवर्ड जाती है इनटू रेड सी। रेड सी इज अगेन पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। फिर ये फर्दर नॉर्थवर्ड जाती है और वेस्ट एशिया में जाकर डेड सी मालूम है ना आप लोगों को? लेक डेड सी। डेड सी जो है ये इस रिफ्ट वैली का नदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? डेड सी। अब डेड सी की वजह से अफ्रीका के इस पार्ट में खूब सारी लेक्स हैं, खूब सारी लेक्स हैं। लेक टंगानाइका, लेक किबू, लेक आर्डवर्ड, लेक आल्बर्ट, लेक नयासा, लेक तना। ठीक है, ऑल लेक्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट वैली हेयर इन दिस पार्ट। बट जो आपकी लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया इज नॉट द पार्ट ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन की वजह से वहां पर खूब सारी लेक फॉर्मेशन हुई हैं। ठीक है, बट जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली की वजह से लेक विक्टोरिया की फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट वैली, नॉट द पार्ट ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट वैली। नेक्स्ट लिखेंगे लेक तंगानाइका। तंगानाइका, it is the deepest lake in Africa, deepest lake in Africa, and second deepest in the world, and second deepest in the world after Lake Baikal in Siberia. After Siberia. Next, Lake Chad. Lake Chad. It is an area of inland drainage in Africa. What is inland drainage? जब रिवर सी तक ना पहुंचकर लैंड में ही खत्म हो जाए, तो दिस इज द एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज इन अफ्रीका and is surrounded by four countries. Surrounded by four countries. Niger, Chad, Niger, Chad और नाइजीरिया, कैमरून। नाइजर, चड एंड नाइजीरिया, कैमरून। एनसीएनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक, नाइजर, चड और नाइजीरिया, कैमरून। अब लेक विक्टोरिया में भी एक पॉइंट ऐड कर दें। इट इज सराउंडेड बाय थ्री कंट्रीज। लेक विक्टोरिया में पॉइंट ऐड कर देंगे। इट इज सराउंडेड बाय थ्री कंट्रीज। शॉर्ट फॉर्म के यू टी याद रख लें या टी यू के याद रख लें। कीनिया, युगांडा, तंजानिया। लेक विक्टोरिया is surrounded by three countries: Kenya, Uganda, and Tanzania. Now, important mountains.
important mountain. First is, here we have the mountains, that is Atlas Mountains. Atlas Mountains. These are the young fold mountains. These are the young fold mountains of Africa, which are spread over young fold mountains of Africa, which are spread over 3 countries: Morocco, Algeria, and Tunisia. Morocco, Algeria, and Tunisia. Next point, these mountains are dwelled by a tribe. These mountains are dwelled by a tribe, namely Berbers. 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 Eastern Highlands, यहाँ पर Eastern Highlands और Ethiopian Highlands. Next mountains, Eastern Highlands or Ethiopian Highlands. Important volcanic peaks of Eastern Africa. Next point. Important volcanic peaks of Eastern Africa are: number 1, Mount Kilimanjaro. Mount Kilimanjaro. It is in Tanzania. इसकी खासियत क्या है? It is the highest peak or point of Africa. Highest peak or highest point of Africa. इसकी एक और खासियत है, it is the tallest freestanding structure in the world. Tallest freestanding structure in the world. What does it mean? अब देखिए, इससे बहुत बड़ी बड़ी tallest peaks हमारे पास हैं, but all other peaks are part and parcel of some mountain ranges. What is a mountain range? Series of mounts together is called as a mountain range. But Kilimanjaro का क्या है? Surrounding area पूरा flat है, बीच में one single peak है. It is the world's tallest freestanding structure, मतलब without any support. The one single tallest mount in the world, that is Mount Kilimanjaro. Next, it is an example of dormant volcano. Example of dormant volcano. So Kilimanjaro is a volcanic peak, but कौन सा example है? Dormant volcano का. Next is Mount Kenya. Mount Kenya. अब माउंट कीनिया नाम लिया तो कीनिया में ही होगा. इसकी खासियत क्या है? देखेंगे. Equator passes through it. Equator passes through it. एक और माउंटेन पीक है अफ्रीका में, माउंट रूवनजोरी. या लिखेंगे माउंट बेकर रूवनजोरी. माउंट बेकर रूवनजोरी, ये युगांडा में है.
तो इस हिस्से में ईस्टर्न अफ्रीका में वी हैव थ्री माउंटेन पीक्स, एक माउंट किलिमंजारो, माउंट किनिया और माउंट बेकर रूबेंजोरी। एक तंजानिया में है, एक युगांडा में है और एक केनिया में है। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका में भी एक माउंटेन्स हैं which are called as Drakensberg. Drakensberg, South Africa. Drakensberg Mountains, South Africa. Next, important deserts. Important deserts. First and foremost, Sahara. It is the world's largest desert. World's largest desert. And it lies in northern Africa. World's largest desert, and it lies in Africa. Next point, southern part of Sahara. Southern part of Sahara, south of Sahara lies Sahel region. Sahel. Lies the Sahel, Sahel, Sahel region, which is the most drought-prone region in the world. Which is the most drought-prone region in the world. आपने खूब सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी ना, माल नरिश बच्चों की, है ना, वो सभी कहाँ पर हैं? साहिल एरिया में. वेरी वेरी बैकवर्ड, इकोनॉमिकली, सोशली बैकवर्ड रीजन इज साहिल. नेक्स्ट लिखेंगे हम नूबियन डेजर्ट, NUBIAN, नूबियन डेजर्ट. इट इज इन इजिप्ट. Nubian, it is in Egypt. Next is Libyan desert, Libya, Libyan desert. It is spread over Egypt, Sudan and Libya. Libyan desert spread over Egypt, Sudan and Libya. Next, Namib desert. Namib desert, Namibia. Next is very very important, Kalahari desert. Kalahari desert. Major part of it lies in Botswana. Major part of it lies in Botswana. It is known as Thirstland, or is named as Thirstland, and is famous for one very important and famous tribe. शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, Bushmen. And Bushman people lives in Kalahari desert. Next is important grasslands. Important grasslands. Grasslands कितने किस्म के होते हैं? एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स अफ्रीका में क्या नाम है उनका? Savanna. They are found in Eastern Africa
and they are best developed in Sudan. Second is Bushveld in South Africa. Temperate grasslands are known as Highveld in South Africa. Now, important point of Africa. Now, Africa is the only continent. Africa is the only continent from where equator and both the tropics passes. ये एक ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर भी पास करता है और दोनों ट्रॉपिक्स भी पास करते हैं. The only continent from where equator and both the tropics passes. इसका मतलब क्या हो गया कि जितना मैक्सिमम ट्रॉपिकल एरिया किस कॉन्टिनेंट में होगा, अफ्रीका में ही होगा. बिकॉज मैक्सिमम ट्रॉपिकल जोन क्यों है? बिकॉज इक्वेटर भी पास कर रहा है और दोनों ट्रॉपिक्स भी पास कर रहे हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट, सो इट इज द मोस्ट ट्रॉपिकल ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स. सो इट इज मोस्ट ट्रॉपिकल ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स. Next, lowest point of Africa. Lowest point of Africa, Lake Assal. It is in the country called as Djibouti. ये इस एरिया में है, Djibouti. Lake Assal in Djibouti. तो highest point of Africa, Mount Kilimanjaro. Lowest point is Lake Assal. Now, southernmost point of Africa. Southernmost point. हाँ जी, Cape Agulhas. Southernmost point is Cape Agulhas. Next point, Africa was called as the dark continent. अफ्रीका को ये लिखा दी शायद मैंने आपको, नहीं लिखवाया हुआ. अफ्रीका was called as dark continent. क्यों कहते होंगे dark continent? हाँ जी, एनीबॉडी? इसको डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते होंगे अफ्रीका को? काले लोग हैं इसलिए नहीं, मैं मारूंगा पॉलिटिक्स ने बोला तो. अंडरडेवलप और शाबाश, गुड. प्रिमिटिव है और शाबाश. अब देखो क्या है, अब हम वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं ओल्ड वर्ल्ड रीजन्स, ओल्ड वर्ल्ड रीजन्स और न्यू वर्ल्ड रीजन्स. न्यू वर्ल्ड रीजन्स. ओल्ड वर्ल्ड किसको बोलते हैं? अब आप जितनी भी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो या मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो, वो किस रीजन की है? या तो वो एशिया की है, या तो वो यूरोप की है, या वो नदर्न अफ्रीका की है. वेयर एज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका की कोई हिस्ट्री में नाम नहीं आता. ना ही एंशियंट हिस्ट्री में नाम आता है, ना ही आपकी मिडिवल हिस्ट्री में आता है. तो ओल्ड वर्ल्ड रीजन के अंदर सिर्फ एशिया, यूरोप और नदर्न अफ्रीका आते हैं, क्योंकि नदर्न अफ्रीका के नीचे था हमारे पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कॉल्ड है सहारा. तो सहारा को क्रॉस कर कर ये जान पाना कि आगे अफ्रीका में क्या है, ये पता नहीं था बड़ी देर तक. तो द एरिया साउथ ऑफ सहारा वॉज नॉट नोन टू द वर्ल्ड. इट वॉज डिस्कवर्ड मच लेटर ऑन. जैसे इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड सदर्न अफ्रीका, ये जो एरियाज हैं बहुत लेटर हमें मिले हैं.
तो इनको हम क्या बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड रीजन्स। ठीक हो गया। बिकॉज को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ लिटिल और नो नॉलेज अबाउट अफ्रीकन लैंड साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट, उसको बोलते हैं डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है, लिख देंगे कॉल्ड एज डार्क कॉन्टिनेंट बिकॉज of little or no knowledge, because of little or no knowledge of Africa, especially the areas, south of Sahara Desert, especially the areas south of Sahara Desert. अब एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब आप कभी अफ्रीकन मैप देखेंगे तो आपको जो ये वाला पार्ट दिखता है ना, ये वाला पार्ट, ये ऐसा दिखता है जैसे किसी राइनोसरस का सिंग हो। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस पे 3 कंट्रीज आर लोकेटेड। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज ऑक्यूपाइड बाय 3 कंट्रीज। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज ऑक्यूपाइड बाय 3 कंट्रीज। नंबर 1 इज जिबूटी, second is Somalia, third is Ethiopia. एक point, at 3 places, Africa touches or almost touches यूरेशिया। यूरेशिया क्या हुआ, यूरोप प्लस एशिया। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है, और थर्ड पॉइंट ये है। तो इन तीनों के नाम है, फर्स्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सेकंड इज दिस पार्ट, इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, ये इजिप्ट के पास है। एंड थर्ड इज द स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब। तो इन 3 जगहों पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टचेस और ऑलमोस्ट टचेस यूरोप एंड एशिया। The Strait of Gibraltar, Sinai Peninsula, and your Bab al-Mandab State. Next, 4 largest countries of Africa. 4 largest countries of Africa. Number 1 is Algeria. Number 2 is Democratic Republic of Congo. Democratic Republic of Congo, number 2. Third, Sudan. पहले सुडान नंबर 1 पे था लार्जेस्ट कंट्री में, फिर साउथ सुडान अलग हो गया तो उसका साइज छोटा हो गया, नाउ इट इज नंबर 3. फोर्थ इज लिबिया, नेक्स्ट इज 4 most populous countries of Africa. 4 most populous countries of Africa. Number 1 is Nigeria. 2, Ethiopia. Third, Egypt.
Fourth is Democratic Republic of Congo. Democratic Republic of Congo. Next, oldest surviving language of Africa. Swahili. Oldest surviving language of Africa is Swahili. Next, two countries of Africa which were never colonized. One is Liberia. Second is Ethiopia. Liberia and second is Ethiopia. Next, the land of gold and diamonds. Land of gold and diamonds. किसको बोलते हैं? साउथ अफ्रीका को. Land of gold and diamonds is South Africa. Next is land of oil palm. ये कहा जाता है नाइजीरिया को. Land of oil palms is Nigeria. Next, clove bowl of the world. क्लोव क्या होते हैं? लौंग. दो आइलैंड्स हैं इन तंजानिया. एक का नाम है ज़ांज़ीबार, दूसरे का नाम है पेम्बा. इन आइलैंड्स को कहा जाता है क्लोव बोल ऑफ द वर्ल्ड. इन दोनों में भी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो ज़ांज़ीबार. Clove bowl of the world, Zanzibar and Pemba, that is the islands of Tanzania. ठीक हो गया जी. ये था जी आपका अफ्रीका. नाउ नेक्स्ट, अमेरिकाज. अमेरिकाज को हम ज्योग्राफिकल डिवीजन में डिवाइड करते हैं और एक कल्चरल डिवीजन में डिवाइड करते हैं. ज्योग्राफिकल डिवीजन में नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका. कल्चरल डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. एक हम बोलते हैं एंग्लो अमेरिका, एक हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका. तो कल्चरल डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. तो वन इज एंग्लो अमेरिका, सेकेंड इज लैटिन अमेरिका. एंग्लो अमेरिकन इज दैट पार्ट ऑफ अमेरिका वेयर English is the most dominant language. और इसमें आपका दो कंट्रीज आते हैं, एक कनाडा प्लस यूएसए. तो कनाडा और यूएसए को कहा जाता है एंग्लो अमेरिका. अब लैटिन इज एन एंशिएंट लैंग्वेज जिसकी आज हमारे पास 4 ऑफशूट्स हैं. फर्स्ट इज पोर्चुगीज, सेकेंड इज स्पेनिश, थर्ड इज फ्रेंच, फोर्थ इज इटालियन. तो लैटिन इज द मदर ऑफ 4 मॉडर्न लैंग्वेजेस.
पोर्चुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच और इटालियन। तो जिस रीजन में अमेरिकास के इन 4 लैंग्वेजेस की डोमिनेंस हो उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका। इसमें क्या क्या आता है? मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका बोलते हैं। ठीक हो गया? अब आपने कभी मैप देखा है अमेरिकास का? ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है और ये आपका सेंट्रल अमेरिका है जहाँ पे हमारे पास आइलैंड्स है। ये बीच में सेंट्रल अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। अब ये रहा आपका कनाडा, ये यूएसए, ये मैक्सिको, ये आपका सेंट्रल अमेरिका और ये आपका साउथ अमेरिका। So this part is your Central America, this is your South America, ये आपका नॉर्थ अमेरिका। बट अगर हम कल्चरल डिवीजन की बात करेंगे तो मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका इज कॉल्ड एज लैटिन अमेरिका। और इसको क्या बोलते हैं? एंग्लो अमेरिका। अब यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर एक रिवर है जो इसका बॉर्डर बनाती है। उस रिवर का नाम है रिवर रियो ग्राने। इस रिवर को बोलते हैं कल्चरल बाउंड्री बिटवीन एंग्लो अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। तो रिवर रियो ग्राने इज अ कल्चरल बाउंड्री बिटवीन एंग्लो अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। ठीक हो गया? क्लियर हो गया सबको? नाउ गिव हेडिंग पॉलिटिकल नॉर्थ अमेरिका। पॉलिटिकल नॉर्थ अमेरिका। अब पॉलिटिकली नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज आती हैं और एक कॉलोनी आती है। फर्स्ट इज योर कनाडा, second is USA, third is Mexico, and fourth is your colony that is called as Greenland. Capital of Canada? Ottawa. USA? Washington, DC. Full form of DC? District of Columbia. Capital of Mexico? Mexico City. ग्रीनलैंड की कैपिटल नहीं पता होगी। नुक और गॉडथैब। नुक और गॉडथैब। इट इज अ कॉलोनी ऑफ डेनमार्क। और खासियत क्या है इसकी? लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। क्लियर हो गया?
अब इसके साथ आप सेंट्रल अमेरिका भी कर लो यार, लगे हाथ। सेंट्रल अमेरिका, पॉलिटिकल सेंट्रल अमेरिका। जो नाम आपने नहीं सुने होंगे उनको मत लिखिएगा बेशक। यार एक पॉइंट हमने मिस कर दिया शायद, अफ्रीका में। किसने मुझे रिमाइंड भी नहीं करवाया। क्या नहीं करवाया? तो जो बड़ा मेजर पॉइंट है साउथ अफ्रीका में। सुएज कैनाल, है ना? नहीं करवाया ना? देखो, सुएज कैनाल, सुएज कैनाल ये मेरा मिस हो गया। इट इज 160 kilometers long canal, 160 kilometers long canal, which is cut through, which is cut through Suez Isthmus, Suez Isthmus in Egypt, in Egypt. It was built by French engineer Ferdinand de Lesseps in 1869. Ferdinand de Lesseps in 1869. The two terminal points, the two terminal points of Suez Canal are, first is Suez along the Red Sea, second is Port Said along Mediterranean Sea. There are two lakes within Suez Canal. One is Great Bitter Lake and second is Little Bitter Lake. There are two lakes within the Suez Canal. One is Great Bitter Lake, second is Little Bitter Lake. This canal shortened the sea route. This canal shortened the sea route from Europe to Asia. सुएज कैनाल से पहले कौन सा सी रूट था यूरोप टू इंडिया? दैट वाज कॉल्ड एज केप ऑफ गुड होप रूट। केप ऑफ गुड होप। पहले यहां से हम इंडिया या एशिया में आया करते थे। जब ये कैनाल बन गई तो अब इसको हम यहां से आते हैं, तो इट शॉर्टन्ड द सी वॉयज। और रूट क्या था? द केप ऑफ गुड होप रूट। अब क्या हो गया? सुएज कैनाल। तो इट रिड्यूस द सी जर्नी ड्रास्टिकली। ठीक हो गया? चले आ जाओ वापस। सेंट्रल अमेरिका, पॉलिटिकल सेंट्रल अमेरिका। फर्स्ट कंट्री इज Belize. Second, Guatemala. Third, Honduras. Fourth,
एल साल्वाडोर। फिफ्थ, निकारागुआ। सिक्स्थ, कोस्टा रिका। सेवंथ, पनामा। पनामा से क्या चीज याद दिमाग में आई? ये है आपकी कोस्टल कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। कोस्टल कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। अभी आइलैंड कंट्रीज, फर्स्ट इज, सबने नाम सुना होगा पर इनकी कैपिटल्स नहीं की ना। भी पहले लिख दूं या यहाँ लिख दूंगा बाद में, है ना? चलें। क्यूबा। सेकंड इज बहामास। थर्ड इज जमाइका। फोर्थ इज हयाती। फिफ्थ इज डोमिनिकन रिपब्लिक। सिक्स्थ इज प्यूर्टो रिको। सेवेंथ इज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये है मेजर आइलैंड कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। Now the capitals: Belize, Belmopan, Guatemala, Guatemala City, Honduras, Tegucigalpa, El Salvador, San Salvador, Nicaragua, Managua, Costa Rica, San Jose, Panama, Panama City. क्यूबा, हवाना, बामास, नसाउ, जमाइका, किंगस्टन, हयाती, पोर्ट ओ प्रिंस, डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंटो डोमिनिगो, प्यूर्टो रिको, सैन जुआन। प्यूर्टो रिको इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, इट इज ए कॉलोनी ऑफ यूएसए। उसको बोलते हैं सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ऑफ यूएसए। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन। ये हैं आपकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। ठीक हो गया यहां तक? डन। क्लियर? अब पॉलिटिकल साउथ अमेरिका भी कर दो, खत्म करते हैं पॉलिटिकल आज, फिर कल शुरू करेंगे। कल पक्का? चलो। अच्छा, वेस्ट इंडीज क्या है भाई? आपका होमवर्क है, ढूंढ के आओगे। ठीक है, कल थोड़ी बात करेंगे वेस्ट इंडीज की। व्हाट इज वेस्ट इंडीज? नाम सुना सबने कि नहीं?